Welcome back, dear students, on my YouTube channel Biology with Dharamveer. This is Dharamveer Singh, and today we will going to discuss about our next topic, that is mutation and genetic code of chapter Molecular Basis of Inheritance, called class 12th Biology. Students, here we will discuss about what happens when there will be a mutations happen in the genetic code, means in a triplet codon. As we know that this is a triplet codon, AUGCCA. What happens if any new nitrogen base comes in this, or what happens when any nitrogen base deleted from this particular genetic code? Okay, we know that this is a triplet codon and this is another triplet codon. If another, we can say that it's the AUG code for the methionine, If another nitrogen base comes in within A and U, means here C, then what happens? The total reading frame will be changed. Now it is ACU, and this codes for another different amino acid. So if there is a simple nitrogen base comes in between the triplet codon, then what happens? A total amino acid should be changed, and this amino acid change the complete conformation of a protein. So we can say that the mutations are either we can say that they are sense mutation, means it's completely change the sense of a protein. There are some nonsense and missense mutations also. So all these things we will discuss in the brief today. Okay, the relationship between the genes and the DNA are best understood by the mutation studies. Okay, what are the here we also discuss about the mutation in the case of the genes. In our last chapter we have discussed mutation in the case of chromosomal mutations like structural changes and we can say that numerical changes. But here we will discuss about the mutation in the case of genes. What is a gene that is responsible for a particular mRNA. बेटा अगर कोई जीन के अंदर अगर सेगमेंट में या उसके जीन के अंदर म्यूटेशन होता है, then it is lead to the an abnormal protein. तो अगर जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा तो उससे एक बनने वाला प्रोटीन एबनॉर्मल हो जाएगा, जो प्रोटीन चाहिए होगा वो नहीं बनेगा. लाइक इन द केस ऑफ द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. In the case of muscular dystrophy, a protein in the protein that is responsible for the muscular dystrophy, in this protein 508, okay, from the 508 numbers पोजीशन 508 पोजीशन पर से एक फेनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड डिलीट हो जाता है. मीन्स वहाँ पे फेनाइल एलेनिन होना चाहिए था और फेनाइल एलेनिन के अंदर म्यूटेशन हो गया. जो कोडॉन फेनाइल एलेनिन को बना रहे थे उनके अंदर म्यूटेशन हो गया, फेनाइल एलेनिन की जगह पे कोई दूसरा अमाइनो एसिड बन जाता है. एंड दिस इज लीड अ डिसीज दैट इज कॉल्ड एज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. मसल्स जो होती हैं डिस्ट्रॉफस हो जाती हैं ऐसे लोगों की. सो you have studied about the mutation and its effect in the chapter 5. Effect of the large deletions and rearrangement in a segment of DNA are easy to comprehend. Means if we were discussing about the change in the case of the DNA, means chromosomes, then we learned that there is something we can say that it is either, if there are numerical changes, they are either monosomy or trisomy or polyploidy or euploidy. So this type of changes are very typical, but here we clearly know that this is a particular nitrogen based triplet, and this triplet is changed to form another amino acid that is not useful for the formation of this particular protein. Okay, it may result in the loss or gain of a gene and so a function. The effect of point mutation will be explained here. बेटा यहाँ पे क्या हम point mutation को explain करेंगे. Point mutation means if this is a DNA segment and this have this nitrogen bases A U G C C A, sorry it is mRNA, this is a mRNA. ये एक mRNA है और इसके ऊपर कुछ स्पेशल टाइप के नाइट्रोजन बेसेस हैं AAGGC.
Okay, then what is point mutation? If any particular nitrogenous base deleted और इंसर्टेड, बेटा अगर यहाँ से C चली जाए या यहाँ पे एक नया G आ जाए, मीन्स हम पहले तो देख रहे थे एक ट्रिपलेट AUG था, दूसरा ट्रिपलेट CCA था, फिर ACAGG था, लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी नया एक नाइट्रोजन बेस आ गया, डिलीट हो गया, पहले हम देखते हैं कि डिलीट हो गया, तो डिलीट हो गया तो AUG एक तो ये फ्रेम रहा, लेकिन दूसरा CCA की जगह पे बेटा क्या हो जाएगा, CAA। अगर यहाँ से चला गया तो क्या हो गया, CEA, मीन्स पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया। ठीक है, एक अगर पॉइंट पे कोई नई चीज़ आती है और या नई चीज़ या तो नाइट्रोजन बेस आ जाता है तो नाइट्रोजन बेस चला जाता है, तो इस तरीके से जो म्यूटेशंस होते हैं दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशंस। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर फॉर ईच अदर। इफ एनी अमाइनो एसिड कम इन द mRNA at a particular location or deleted from a particular location or from a point, then such type of mutations are called as point mutation। ऐसे म्यूटेशन को हम क्या नाम देते हैं, point mutation। The effect of point mutation will be explained here. What is the effect? जैसे हमने बोला था बेटा, यहाँ पे प्रोटीन पहले जो जीन बन रही थी वो कोई एक नॉर्मल, पहले जो प्रोटीन बन रही थी कि नॉर्मल प्रोटीन थी, एक AUG था, फिर CCA था, लेकिन AUG तो वैसे ही रहा, CCA की जगह पे क्या हो गया, CAA हो गया, या तो यहाँ पे C जा कर के G आ गया तो CGO हो गया, तो टोटली ये प्रोटीन का कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे अमाइनो एसिड होना चाहिए था उसकी जगह पे कोई नया अमाइनो एसिड आ जाएगा। सो क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर। क्या होगा बेटा, सिंगल बेस के अंदर, अभी जैसे हम बोले थे ना सिंगल नाइट्रोजनस बेस के अंदर चेंज आएंगे, सिंगल बेस पेयर इन द जीन फॉर बीटा ग्लोबिन चेन दैट रिजल्ट इन द चेंज ऑफ द अमाइनो एसिड रेजिड्यू glutamate to the valine। okay, the best example is the disease sickle cell anemia। जैसे बेटा हम सिकल सेल एनीमिया के केस में देखते हैं बीटा चेन के 6 नंबर 6 नंबर से 6 नंबर पे बेटा अमाइनो एसिड होता है ग्लूटामेट। कौन सा होता है, ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड होता है 6 नंबर में, लेकिन होता क्या है पॉइंट म्यूटेशन के थ्रू बेटा, यहाँ पे मान लिया ग्लूटामेट के लिए ACA था और यहाँ पे AC की जगह पे ये डिलीट हो गया और G आ गया, तो AGA हो जाता है, तो वहाँ पे ग्लूटामीन की जगह पे वेलिन आ जाता है। क्या आ जाता है, वेलिन। ग्लूटामीन और ग्लूटामीन नॉट ग्लूटामीन, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड बेटा क्या था, एक चार्ज अमाइनो एसिड था और उसकी जगह बेटा कैसा आ गया, एक हाइड्रोफोबिक अनचार्ज अमाइनो एसिड। तो टोटल कन्फर्मेशन चेंज हो जाता है प्रोटीन का सिर्फ एक अमाइनो एसिड के चेंज से या एक नाइट्रोजन बेस के चेंज से। ठीक है, एंड सच टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन कन्वर्टेड इनटू द सिकल शेप, दैट्स व्हाई द डिसीज इज कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया। इसलिए बेटा ऐसे डिसीज को हम क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। इन दिस डिसीज व्हाट हैपेंस, द पेशेंट दैट आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज आर अनेबल टू कैरी द एज मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर देयर बॉडी। जो बेटा उनकी बॉडी के लिए ऑक्सीजन का अमाउंट रिक्वायर होता है उतना अमाउंट नहीं लेके जा पाती हैं ऐसी हीमोग्लोबिन, बिकॉज ऑफ जो एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन होती है दैट इज फ्रॉम RBC इज राउंडेड शेप। बेटा कैसा होता है, स्फेरिकल। और जो डिसीज़ हो गई है अभी वो स्फेरिकल के बजाय बेटा कैसी हो गई है, सिकल शेप और हंसिया जैसी हो गई है। सो सच टाइप ऑफ डिसीज कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया दैट इज कॉज्ड ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन। बेटा पॉइंट म्यूटेशन के थ्रू होती है जिसमें एक बेस पेयर के अंदर चेंज आ जाता है एंड दिस बेस पेयर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वेलिन अमाइनो एसिड इंस्टीड ऑफ द ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामेट। Same thing, glutamate or glutamic acid, but glutamate and glutamine are the different amino acids. It result into a disease conditions called as sickle cell anemia. Okay, effect of point mutations that inserted or deleted a base in a structural gene can be better understood by the following simple example। ठीक बेटा, अब हम देखते हैं जो कैसे किसी एक बेस पेयर के अंदर चेंज होने से क्या डिफरेंट अमाइनो एसिड के अंदर चेंजेस आते हैं। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस। कंसीडर अ स्टेटमेंट दैट इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ईच हैविंग द 3 लेटर लाइक द जेनेटिक कोड। ओके बेटा, यहाँ पे कोई जेनेटिक कोड नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए एक बनाया गया है सिस्टम। राम हैज़ रेड कैप,
means ram, RAM, ram. It's also have 3-letter code, means a triplet, has a triplet, red a triplet and cap a triplet. बेटा यहाँ पे एक नॉर्मल ट्रिपलेट कोडान था. ओके, दिस इज एट नॉर्मल ट्रिपलेट कोडान. हम देखते हैं एक mRNA के ऊपर हम समझ सकते हैं कि एक mRNA के ऊपर का नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस था. ये एक mRNA है और उसके ऊपर नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस एक नॉर्मल सीक्वेंस था. इसमें 3-3 के ट्रिपलेट बने हुए थे, सभी 3-3 के ट्रिपलेट बने हुए थे और एक नॉर्मल प्रोटीन के लिए जो अमाइनो एसिड होते हैं उनके लिए कोड कर रहे थे. नाउ व्हाट हैपन इफ़ वी इंसर्ट अ लेटर बी इन बिटवीन HAS एंड RED. अगर बेटा इन्होंने क्या बोला, एक लेटर बी इन्होंने इंसर्ट कर दिया इन दोनों के बीच में यहाँ पे, तो क्या होगा. ठीक है, तो बेटा जैसी लेटर बी यहाँ पे आएगा, जैसे लेटर बी यहाँ पे आएगा, रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा. कैसे चेंज होगा हम आपको बताते हैं. पहला तो RAM होगा, दूसरा तो HAS होगा, राम हैज़. फिर क्या हो जाएगा, RED की जगह पे बेटा क्या आ जाएगा, 3 ये ले लेगा, ये BRE. ओके, BRE. और थर्ड में बेटा क्या चला जाएगा, DCA और इधर P बचेगा. ठीक है, मीन्स क्या होगा, ये अमाइनो एसिड टोटली चेंज हो जाएगा, ये अमाइनो एसिड भी टोटली चेंज हो जाएगा. क्योंकि हमने बोला है अमाइनो एसिड के लिए बेटा कितना होना चाहिए, एक ट्रिपलेट होना चाहिए. अगर ट्रिपलेट के अंदर कोई भी चेंज आता है तो अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है. कभी कभी नहीं होते हैं, क्योंकि बेटा क्या होता है, एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडान होते हैं. ठीक है, तो कभी कभी जब कोडान चेंज हो जाता है लेकिन फिर भी अमाइनो एसिड नहीं चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एज मिससेंस म्यूटेशन. म्यूटेशन तो हुआ लेकिन अमाइनो एसिड नहीं चेंज हो पाया. सच टाइप ऑफ म्यूटेशंस आर कॉल्ड एज मिससेंस. और बेटा क्या बोलते हैं इसको, मिससेंस. उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा, सेम अमाइनो एसिड बनेगा, प्रोटीन के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी. लेकिन हम यहाँ पे उन प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, उन म्यूटेशंस की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ट्रिपलेट कोडान चेंज हो रहा है तो टोटल अमाइनो एसिड चेंज हो जा रहा है. अगर एक भी अमाइनो एसिड चेंज हो गया देन टोटल प्रोटीन विल बी चेंज. तो बेटा क्या होगा, टोटल प्रोटीन चेंज हो जाएगी. ओके, क्या हुआ, जैसे ही हमने बी इंसर्ट किया तो बेटा क्या हो गया, देखते हैं. arrange the statement, it would be read as follows. अब बेटा कैसे वो पढ़ा जाएगा, राम हैज़. देखो बेटा वहाँ पे क्या था, रेड कैप. अब रेड के बीच में बी आ गया था तो क्या हो गया, BRE, DCA और P अलग हो गया. मीन्स ये अमाइनो एसिड जो बन रहा था चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया. सिमिलरली if we now insert 2 letters at the same place, say BI. अगर बेटा इन्होंने क्या किया, 2 लेटर इंसर्ट कर दिए, पहले बी था अब आई भी ले आए, फिर देखते हैं कि रीडिंग फ्रेम टोटली चेंज हो गया. ठीक है, नेक्स्ट, नाउ वी इंसर्ट 3 लेटर्स टुगेदर, से बिग. ठीक है बेटा, अगर एक साथ उन्होंने पूरा 3 लेटर डाल दिए, मीन्स पूरा का पूरा एक नया अमाइनो एसिड डाल दिया. लाइक राम हैज़, सेम ऐसे ही रहेगा. बिग, BIG, बिग रेड कैप. मीन्स यहाँ पे एक ट्रिपलेट की जगह पे पूरा का पूरा एक नया ट्रिपलेट ही डाल दिया, 3 नाइट्रोजन बेस डाल दिए हैं. क्या होगा, द सेम एक्सरसाइज कैन बी रिपीटेड बाय द डिलीटिंग द लेटर्स. अभी तो बेटा हम इंसर्ट कर रहे थे, इंसर्शन म्यूटेशन हो रहा था, इज ऑल्सो टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन. नाउ इट इज़ अ डिलीशन म्यूटेशन. अब क्या होगा, एक डिलीशन म्यूटेशन होगा. हम एक एक करके डिलीट करेंगे, पहले R डिलीट कर दे रहे हैं, फिर E डिलीट करेंगे, फिर D डिलीट करेंगे. तो बेटा जब यहाँ पे R डिलीट कर दिया, राम हैज़, यहाँ पे बेटा क्या होना चाहिए, RED, रेड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे रेड था ना, R चला गया तो क्या हो जाएगा, EDC. और CAP की जगह पे AP बचेगा क्योंकि यहाँ से R चला गया. तो क्या होगा, रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा एक तरफ. क्या होता है बेटा, रीडिंग फ्रेम राइट और लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है. जब रीडिंग फ्रेम शिफ्ट होता है राइट और लेफ्ट, देन सच टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. ठीक है बेटा, रीडिंग फ्रेम का लेफ्ट या राइट शिफ्ट हो जाना, किसी भी पार्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए रीडिंग फ्रेम का राइट और लेफ्ट शिफ्ट हो जाना ही एक स्पेशल टाइप का म्यूटेशन को ओरिजिनेट करता है. सच टाइप ऑफ द म्यूटेशन इज कॉल्ड एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. क्यों, बिकॉज ऑफ
रीडिंग फ्रेम वुड बी चेंज, क्या हुआ है, रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया है, देन सच टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ऐसे म्यूटेशन को हम क्या नाम देते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जब एक पॉइंट से बेटा कोई अमाइनो एसिड डिलीट हो गया इट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन, लेकिन जब टोटल रीडिंग फ्रेम चेंज हो रहा है देन इट इज कॉल्ड एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जैसा आपने देखा यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे देखा, दैट इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ओके, नाउ द कंक्लूजन फ्रॉम द above एक्सरसाइज इज वेरी ऑब्वियस। मीन्स अगर आप लोग इसको सही से करेंगे, एक बार घर में एग्जाम्पल के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे, इट इज मेक वेरी सिंपल फॉर यू। ओके, वेरी ऑब्वियस, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन और टू बेस चेंजेस द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन। ठीक है बेटा, जहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन हुआ है वहाँ से कंप्लीट रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, कंप्लीट रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है। हाउएवर सच म्यूटेशंस आर रिफर टू एज फ्रेम शिफ्ट और डिलीशन म्यूटेशन। विच टाइप ऑफ, फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और फ्रेम शिफ्ट डिलीशन म्यूटेशन। अगर बेटा कोई चीज़ इंसर्ट हुई है और फिर उसका फ्रेम रीडिंग फ्रेम चेंज हुआ है दैट इज कॉल्ड एज फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन। अगर डिलीट होने के बाद फ्रेम चेंज हुआ है, रीडिंग फ्रेम चेंज हुआ है, दैट इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट deletion. Okay, so frame shift mutation are also of two type, frame shift insertion mutation और frame shift deletion mutation। एक बार फिर से हम क्लियर करेंगे। इफ दिस इज mRNA, अगर ये mRNA है और यहाँ पे कुछ नाइट्रोजन बेस हैं, हम वही बताएंगे जो होते हैं इसके ऊपर यू। ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल रीडिंग फ्रेम, वी कैन से दैट ये बेटा एक नॉर्मल रीडिंग फ्रेम था। क्या हुआ, यहाँ से सी डिलीट हो गया, क्या हो गया, सी डिलीट हो गया। नाउ व्हाट हैपेंस, AUG जो नॉर्मल, अब क्या हुआ, लेफ्ट में फ्रेम्स बेटा क्या है, रीडिंग फ्रेम लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, देन सच टाइप ऑफ फ्रेम शिफ्ट इज कॉल्ड एज डिलीशन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ओके, एंड इफ इट इंसर्ट हियर, अब अगर यहाँ पे बेटा जी इंसर्ट हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, फिर से फ्रेम एक नया रीडिंग फ्रेम बनेगा, फ्रेम जो रीडिंग फ्रेम ओल्ड वाला चेंज हो जाएगा, एंड सच टाइप ऑफ म्यूटेशंस आर कॉल्ड एज इंसर्शन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ओके, नेक्स्ट, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ द थ्री और इट्स मल्टीपल बेस, क्या बेटा है, तीन या तीन के मल्टीपल में होता है, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ थ्री और इट्स मल्टीपल बेसिस, इंसर्ट और डिलीट इन वन और मल्टीपल कोडॉन्स, हेंस वन और मल्टीपल अमाइनो एसिड्स एंड रीडिंग फ्रेम रिमेन्स अनअल्टर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स। मीन्स क्या है बेटा, अगर तीन मीन्स टोटल एक नया अमाइनो एसिड आ गया, तीन या उसके मल्टीपल 6, 9, 12 ऐसे अगर अमाइनो एसिड आ रहे हैं बेटा, तो क्या होता है, रीडिंग फ्रेम तब इधर उधर नहीं होते हैं, रीडिंग फ्रेम सेम रहेंगे। अगर 3 अमाइनो एसिड आ गए तो बेटा जैसे हम ऐसे देख लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे AUGCC AUA 3 3 AA। ठीक है बेटा, ये एक था रीडिंग फ्रेम था AUGCCU और यहाँ पे फिर से यहाँ बीच में कोई तीन नाइट्रोजन बेस आ गए CCC। ठीक है, तो बेटा ये रीडिंग फ्रेम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे ना, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका तो अपना नया रीडिंग फ्रेम लेकर के आया है। तो ऐसे म्यूटेशंस को हम फ्रेम शिफ्ट नहीं बोलेंगे। सच टाइप ऑफ म्यूटेशन डू नॉट कॉल्ड एज और डू नॉट ट्रीटेड एज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इनको हम फ्रेम शिफ्ट नहीं बोलते हैं। एग्जामिनेशन के अंदर बहुत बड़े से क्वेश्चंस आ जाते हैं, इज अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और नॉट। सो इफ द थ्री और ट्रिपलेट टोटल ट्रिपलेट इंसर्टेड देन सच टाइप ऑफ द म्यूटेशंस आर कॉल्ड एज, ऐसे म्यूटेशंस को हम फ्रेम शिफ्ट नहीं बोलेंगे, दे आर नॉन सेंस सॉरी मिस सेंस म्यूटेशंस, not a missense but they are not frame shift mutation, tRNA. Okay, next and very important thing is that what is tRNA, the adapter molecule. Means tRNA is special type of the RNA molecule that have a triplet base pair है, their base बेटा क्या होता है, इसके बेस पे नाइट्रोजनस बेस का एक ट्रिपलेट होता है जो कॉम्प्लीमेंटरिटी दिखाता है mRNA के साथ में, tRNA मॉलिक्यूल है। और जो बेटा tRNA होता है इसका जो बेस होता है उसके ऊपर भी एक ट्रिपलेट कोड होता है, ये ट्रिपलेट कोड कॉम्प्लीमेंटरिटी दिखाता है किसके साथ में, इट शो द कॉम्प्लीमेंटरिटी विद द कोडॉन्स ऑफ द mRNA, और इसके ऊपर बेटा एक लगा हुआ होता है अमाइनो एसिड।
तो जैसी कॉम्प्लीमेंटरिटी होती है ये अमाइनो एसिड को छोड़ देता है और खुद चला जाता है. नाउ व्हाट हैपेंस, इट्स ऑल्सो लीव एटीपी हियर. और यहाँ पे बेटा एटीपी भी छोड़ के जाता है. वो किस लिए, जब नया, और याद रखेंगे द फर्स्ट ऑलवेज AUG is always first codon codes for the methionine amino acid. बेटा किसके लिए कोड करेगा, methionine amino acid. Now what happens if another tRNA comes, अगला tRNA आएगा उसके ऊपर भी बेटा क्या होगा, एक नया अमाइनो एसिड होगा और ये दोनों अमाइनो एसिड के बीच में जो ATP होगा एक बॉन्ड बना देगा और ये चले जाएंगे. फिर से तीसरा आएगा, धीरे धीरे ऐसे होता रहता है और यहाँ पे अमाइनो एसिड की एक चैन बन जाती है. एंड दिस अमाइनो एसिड चैन इज ज्वाइंड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड ए पॉलीपेप्टाइड चैन. और इसलिए इसको बेटा क्या नाम देते हैं, पॉलीपेप्टाइड चैन. ओके, सो नाउ वी विल लर्न हियर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग of the proposition of the code, it was clear to Francis Crick that there has to be a mechanism to read the code and also to link it to the amino acid. ठीक है बेटा, कि कैसे कोड को लिंक करके अमाइनो एसिड के साथ में हम मीन्स हमने आपको समझाया था हाउ वी लिंक द mRNA, द tRNA, द DNA एंड द प्रोटीन्स. कैसे बेटा, हम DNA से स्टार्ट करते हैं, DNA को mRNA के साथ में लिंक करते हैं. हमने बताया था कैसे कॉपी होती है, कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है. ठीक है, और ये mRNA कैसे tRNA के साथ में लिंक रहता है वो अभी हम ट्रांसलेशन में भी पढ़ेंगे और अभी आप बार आपको हम समझा रहे हैं. एंड हाउ दिस tRNA लिंक विद द अमाइनो एसिड. और ये tRNA कैसे अपने स्पेसिफिक कोडान के साथ में अमाइनो एसिड के साथ में लिंक रहता है. और जैसे अमाइनो एसिड मिलते जाएंगे वैसी प्रोटीन बनेगी. बेटा क्या होगा, वैसी प्रोटीन बनेगी. सो एवरीथिंग इज लिंक टुगेदर बाय ए स्पेसिफिक सिस्टम. बेटा सब कुछ आपस में लिंक है कि हाँ ये DNA है तो ये पर्टिकुलर mRNA के नाइट्रोजन बेस बताएगा. अगर हमको DNA के नाइट्रोजन बेस पता चल जाए तो हम उसके mRNA के नाइट्रोजन बेस बता सकते हैं, उसके tRNA के नाइट्रोजन बेस बता सकते हैं. अगर tRNA के नाइट्रोजन बेस पता है तो हम बता सकते हैं हाँ दिस इज अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड होगा. दिस इज अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड दैट इज लिंक विद दिस tRNA. इस tRNA के साथ में लिंक ये अमाइनो एसिड होगा और फिर उससे हम प्रोटीन की सीक्वेंसिंग कर सकते हैं. दीज आर द पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड दैट आर ज्वाइंड बाय दिस पर्टिकुलर tRNA मॉलिक्यूल्स. ओके, तो बेटा इसको फ्रांसिस क्रिक ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था. because amino acids have no structural specialization to read the code यूनिकली. क्योंकि बेटा अमाइनो एसिड कोई भी उनके पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं था जिससे वो mRNA के कोड को रीड कर लेते. तो इससे क्या हुआ, एक स्पेशल टाइप का एडाप्टर मॉलिक्यूल उनके लिए बनाया गया. ही पॉस्टुलेटेड द प्रेजेंस ऑफ एन एडाप्टर मॉलिक्यूल. तो बेटा फ्रांसिस क्रिक ने कहा एक एडाप्टर होता है. अमाइनो एसिड अपने आप नहीं पढ़ सकते हैं रीडिंग फ्रेम को. द रीडिंग फ्रेम is scanned by a particular adapter molecule that is called as tRNA. He postulated the presence of an adapter molecule that would on one hand read the code and on other hand would bind to specific amino acid. जिसमें बेटा क्या था, एक तरफ क्या था, रीडिंग फ्रेम को mRNA के रीडिंग फ्रेम को पढ़ रहा था, रीडिंग फ्रेम को स्कैन कर रहा था, और दूसरी तरफ उसने अपने ऊपर एक अमाइनो एसिड भी लगा रखा था. क्या लगा रखा था, अमाइनो एसिड भी लगा रखा था. The tRNA then called as sRNA, soluble RNA. उस टाइम बेटा tRNA को हम क्या नाम देते थे, soluble और sRNA. This is most important question asked number of times in PMT. In earlier stages, in earlier discoveries, the tRNA is called as sRNA or soluble RNA. As known before the genetic code was postulated, however its role, इसका बेटा रोल क्या है. As an adapter molecule was assigned much later. पहले तो बेटा उसके रोल के ऊपर बहुत सारी डिस्कवरी होती रही, बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द हरगोविंद खुराना वी नो दैट द एडाप्टर मॉलिक्यूल दैट इज tRNA and this tRNA and the first codon of the each amino acid or each protein, the first amino acid of each protein is methionine. Means the tRNA carry amino acid on their head. Okay,
and reading frame on its tail. This is a particular tRNA. देखो बेटा ये एक tRNA मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये एक पड़ा हुआ mRNA है, जो नीचे एक है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दिस इज mRNA। बेटा ये एक mRNA है और mRNA के ऊपर देखो स्पेशल कोड होते हैं AGU। बेटा देखो कोडान यहाँ पे है ना, AGU, ये कहाँ पे था, दिस इज ऑन mRNA। और जैसे यहाँ पे UCA, जैसे यहाँ पे tRNA आया, वो वाला tRNA जो इसको स्कैन करा, उसकी बेटा कॉम्प्लीमेंटरिटी बिल्कुल सेम हुई। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में कंप्लीटली बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे इनके बॉन्ड बनते हैं तो क्या होगा, ये अपना अमाइनो एसिड जो अपने 3 प्राइम एंड के ऊपर रखता है, वो अमाइनो एसिड यहाँ पे छोड़ देगा और यहाँ से चला जाएगा। अब बेटा क्या होगा, दूसरा वाला अमाइनो एसिड आएगा यहाँ पे। जैसे दूसरा वाला आया तो दूसरे वाले ने देखा अच्छा ये यहाँ पे स्कैन करना है, तो इसको स्कैन किया, जैसे ही कॉम्प्लीमेंटरिटी सेम हुई, वो अपना अमाइनो एसिड का इसके साथ में पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा और वो भी चला जाएगा। फिर यहाँ पे तीसरा आएगा, वो भी यही करेगा, अमाइनो एसिड के साथ में पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, चला जाएगा। फिर चौथा आएगा। धीरे धीरे बेटा ऐसे क्या होगा, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे। व्हेन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड ज्वाइन टुगेदर देन दे फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इसलिए ऐसी चेन को हम बेटा क्या नाम देते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। एंड दिस पॉलीपेप्टाइड चेन अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू अ फंक्शनल प्रोटीन बाय द चेंजिंग इट्स कन्फर्मेशन। अपने कन्फर्मेशन को चेंज करके ये पॉलीपेप्टाइड चेन अल्टीमेटली एक फंक्शनल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है। सो tRNA has an anticodon loop that has base complementarity, means बेटा ये this is called as anticodon। देखो जैसे हम पढ़ रहे थे, this is anticodon loop। जैसे हमने देखा ना tRNA के अंदर बेटा दो हैं, एक बेस में एंटीकोडॉन लूप है और ऊपर की तरफ बेटा क्या है, ऊपर की तरफ अमाइनो एसिड है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, tRNA has an anticodon loop that has base complementarity or base complementary to the code and it also has an amino acid acceptor end। और जो बेटा उसका दूसरा एंड है वहाँ पे अमाइनो एसिड रहता है, to which it bind to the amino acid, जिससे वो अमाइनो एसिड के साथ में बाइंड रहता है। tRNAs are specific for each amino acid। क्या होता है, जो tRNA होते हैं पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होते हैं। फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर स्पेसिफिक tRNA दैट इज रिफर टू एज इनिशिएटर tRNA। बेटा ऑलवेज इनिशिएटर tRNA कौन सा होता है, दैट इज कोड फॉर द मेथिओनिन अमाइनो एसिड। देयर आर नो tRNA फॉर द स्टॉप कोडान, बट स्टॉप कोडान के लिए बेटा कोई भी tRNA नहीं होता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, there is no tRNA for the stop codon, everyone remember it, keep in your mind, there is no tRNA for the stop codon। what are the stop codon, there are 3 stop codon as we learned earlier। जैसे हमने बेटा पहले पढ़ा था ना, 3 stop codon होते हैं, UAA, UAG and UGA। there are 3 stop codon। the secondary structure of tRNA has been depicted that look like a clover leaf। number of time this question is asked, what is a clover leaf structure of tRNA। तो बेटा आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाना होगा। थोड़ा सा आपको हम बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट दिस स्ट्रक्चर। दिस इज अ क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ tRNA। 1 2, थोड़ा सा आर्म निकला हुआ होता है ऐसे, 3। क्या बेटा ऐसे ऐसे बेटा इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, द क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ द tRNA। ठीक है बेटा, इन आवर नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट दिस क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। ओके, इन एक्चुअल स्ट्रक्चर द tRNA इज ए कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल विच लुक लाइक इन्वर्टेड L। जो बेटा कैसा दिखता है, लगभग इन्वर्टेड L जैसा दिखता है। सो दिस इज all about, this is inverted L। so this is all about today's lecture। I think this video is helpful for you। if this video is helpful then please like this video, subscribe my channel, also share this video with your friends। okay dear students।